Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the entrance examination paper for LLM of Maharshi Dayanand University, MDU Rohtak, year 2022. सो फ्रेंड्स, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So you can see the paper comes like this. Year mentioned here. This is series D. You need to fill your roll number in figure, words, name, father name, mother's name, date of examination, signature of candidate and invigilator here. And you cannot take the copy of examination with you. You have to return that. And there is no negative marking. So question number 1 is, arrange the following writs in the correct sequence as given in the Indian Constitution with the help of the codes given below. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज गिवन इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ही प्रॉपर नहीं है. पहला ही क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है. कैसे? देखिए, रिट्स का कोई सीक्वेंस नहीं होता है. वहाँ पर सिर्फ आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कि भाई रिट्स जो इशू होंगी इन द नेचर ऑफ, मतलब बताया है एग्जाम्पल कि भाई ये रिट्स हो सकती हैं. तो अगर उस सीक्वेंस में अगर देखें तो पहले आता है हैबियस कॉर्पस, 2 पहले आया तो 2 हैं ये ऑप्शन कट गए. फिर कौन सा आएगा? मैंडमस. फिर आ गया 5 और 5 देखिए इसमें है. उसके बाद प्रोहिबिशियो, फिर क्यूओ वारंटो और उसके बाद सर्चुररी. तो देखो वो जो है सीक्वेंस में ही नहीं है यहाँ पे. वैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है. इनके ऑप्शन ही प्रॉपर नहीं है. Next is 2. In which one of the following cases Supreme Court of India held that both fundamental right and directive principle of state policy are equally important and one cannot sacrifice for the another. ये था मिनर्वा मिल्स केस. 3 is the answer. बहुत ही important केस है ये. Next is 3. Right to work, to education, to public assistance in certain cases is an essence of which of the following article of the Indian Constitution? This is Article 41. 2 is the answer. 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 39 क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट. एंड 42 इज प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस. नेक्स्ट इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू पंडित ठाकुर दास भार्गव. दैट इज प्रीएम्बल. 4 इज द आंसर. And as per Dr. B.R. Ambedkar, Baba Sahib, which one is the soul of the Constitution? Constitutional remedies, Article 32. This is 5. In which of the following cases Supreme Court made it explicit that even when authority has statutory power to take action without hearing, it would be arbitrary to take action without hearing and thus violative of Article 14. That is H.L. Terahan versus Union of India. 4 is the answer. Next 6. Right of eligible employee to be considered for promotion is virtually a part of fundamental right of employee. Was decided by Supreme Court in Union of India versus Hemraj Chauhan. 1 is the answer. ऐसे 7 मैच करना है. अब ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस कौन सा था? ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना. फिर जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये था इनरी विनायक चंद्र मिश्रा. ओरिजिन जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फिर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस AR अंतुले वर्सेस RS नायक. तो क्या बन गया? 2143. तो 2143. 1 इज द आंसर. Next is 8. In which of the following case Supreme Court held that the Odi Altum Partum rule in essence enforced the equality clause in Article 14
and it is applicable not only to quasi judicial bodies but also to administrative order adversely affect party in question. तो कौन सा केस था ये था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर यूनियन. 2 is the answer. Next is 9. Discretion when applied to a court of justice means sound discretion guided by law. It must be governed by rule, not by humor. It must not be arbitrary, vague and fanciful but legal and regular. This observation was made in Union of India versus Kuldeep Singh. 1 is the answer. This is 10. Equality of opportunity admits discrimination with reason. It was observed by Apex Court in which case? Indira Shawnee versus Union of India. 2 is the answer. Next 11. Which of the following order a court may pass under Order 13 Rule 3 in a suit where neither plaintiff nor defendant appears on a fixed day of hearing? Suit be dismissed. Dismissal of a suit हो जाएगा. 2 is the answer. का मेंशन किया हुआ है रूल 3 में ही. नेक्स्ट 12. मैच द फॉलोइंग करना है अब. सूट बाय और अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म. कौन सा ऑर्डर है ये? 30. सूट बाय और अगेंस्ट माइनर 32 है. सूट बाय इंडिजेंट पर्सन 33 है. मॉर्गेज सूट 34 है. तो क्या बन गया? 2143. 1 इज द आंसर. तो ये देख लो बिकॉज मैक्सिमम केसेज में मैच द फॉलोइंग जो आता है एंट्रेंस में ये 2143 ही रहता है. मैक्सिमम केसेज में, नहीं कह रहा हर केस में, मैक्सिमम केसेज में. Next 13. According to section 58 CPC, no detention in civil imprisonment can be ordered if the decree is for payment of amount not exceeding 2,000 rupees. 3 is the answer. This is 14. Where decree is for the payment of money of a sum of money exceeding 5,000, the period of civil imprisonment shall not exceed 3 months. 1 is the answer. और ये भी सेक्शन 58 में ही मेंशन किया गया है CPC में. कैसे? देखो 2,000 रुपये तक तो कुछ नहीं है, 2 से 5,000 है तो वीक्स की इम्प्रिजनमेंट है. 5,000 से ऊपर का अमाउंट है तो 3 मंथ्स की है. नेक्स्ट 15. एग्जामिनेशन डे बैन ऐसे अंडर ऑर्डर 18 रूल 16 मीन्स इमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. द कोर्ट मेड एनी स्टेज ऑफ सूट मे लोकल इंस्पेक्शन एंड मेक मेमोरेंडम विटनेस डिसेबल ऑफ एनी रीजन. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? एग्जामिनेशन विटनेस बिफोर द हियरिंग. हियरिंग की डेट नहीं है बट ज़रूरी है कि वो कहीं भाग ना जाए या फिर कुछ ऐसा ना कर ले कि मिले ही ना बाद में. तो 1 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 16. अंडर सेक्शन 148 CPC कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days. देखिए ये 148A है, ये 148 नहीं है. तो यहाँ पर इधर गलती कर दी. कई सारी गलतियाँ हैं पेपर में. एंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है वहाँ गलतियाँ जरूर मिलेंगी, टाइपिंग मिस्टेक या फिर ऑप्शन में मिस्टेक. 148 क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ टाइम है वो तो. नेक्स्ट 17. द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) CPC कैन रेफर डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत मीडिएशन. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 18. रीडिंग कैन बी अमेंडेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट. 4 इज द आंसर. चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, फर्स्ट अपलेट कोर्ट, सेकंड अपलेट कोर्ट, हर जगह हो सकती है अमेंड. प्रोविजन कहाँ पर है? ऑर्डर 6 रूल 17 CPC. Next 19. Interpret the suit is a suit between instituted by a person who has no interest in subject matter. ये ऐसे बिल्कुल ठीक है. गवर्नमेंट वाला नहीं, एडवोकेट वाला नहीं. वो पेक्यूनरी नो, किसी कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक्सेप्ट द चार्जेस. तो 3 इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? ये 88 और इसका ऑर्डर कौन सा है? 35 CPC. Next 20. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule of the act, the limitation would be 3 years. का मेंशन किया गया आर्टिकल 113 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट 21. ए वॉलंटरी थ्रो इनटू रिवर रिंग बिलोंग्स टू बी विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू बी. ए हैज़ कमिटेड विच ऑफेंस? मिसचीफ किया है उसने एज पर सेक्शन 425 और ये वहाँ पर इलस्ट्रेशन है. 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 22. पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. क्राइम इज नेसेसरली एन इमोरल एक्ट या फिर एंटी सोशल, एंटी कम्युनल, एंटी रिलीजियस. एंटी सोशल है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है तो 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 23. द क्रिमिनल लायबिलिटी कैन बी फिक्स्ड फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन एज पर सेक्शन 90 IPC इज असरटेन्ड व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड विच प्रिवेंट एक्सरसाइज ऑफ विल या फिर फियर ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू सफर इंजरी. तो 90 में लिखा हुआ है फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन. तो 2 इसका आंसर रहेगा.
Next 24. Which of these facts do not constitute a degree of knowledge for holding a person be criminally liable for adducing false evidence? तो false evidence के बारे में कहाँ पर बात की गई है? सेक्शन 191 में. तो statement is known to be false, believed to be false, not believed, offense committed, not affirmed. तो do not constitute लिखा है ना, that is offense committed but not affirmed. ये नहीं है. ये वो क्यों affirm करेगा? तो 4 is the answer. ये तीनों होते हैं. Next 25. An unlawful assembly is particular state of activity accompanied by the use of force or violence is a riot, but it does not include. कौन सा essential नहीं है इसमें? There must be 5 or more person. बिल्कुल ठीक है. Must be animated by a common object. ये भी ठीक है. फिर a person assembled for lawful purpose but started quarreling without any previous intention. तो प्रीवियस कोई अगर कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे होगा? या लॉफुल पर्पस के लिए वैसे कुछ लोग लड़ पड़े तो अनलॉफुल असेंबली नहीं होती, तो ये नहीं माना जाएगा. 3 इज़ दी आंसर. अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहाँ है? 141 में. रॉयट्स की कहाँ है? 146 में आईपीसी. नेक्स्ट 26. विच सेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन टू दैट ऑफिसर हु फॉलोज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच हैड नो ज्यूरिसडिक्शन? दैट इज 78. 3 इज द आंसर. और हैंगमैन वाला जो आता है वो भी यहीं पर आता है. हैंगमैन ने एज परसुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट कोई जो एक्ट किया है तो वो भी माफ़ होगा. तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 27. विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया? दैट इज सेक्शन 87. 4 इज द आंसर. 81 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन वाला केस आता है ना. 83 क्या है? डोली कपैक्स. और सोचें डोली इनकपैक्स होता है ना, वो 82 में है डोली इनकपैक्स. नेक्स्ट 28. द प्रिंसिपल ऑफ डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव एक्ट्स कहाँ पर है? सेक्शन 95 आईपीसी. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 29. एक्स इंटेंडिंग टू स्टील ऑर्नामेंट्स ओपन वाइज बॉक्स एंड फाउंड इट एम्प्टी. क्या है ये? अटेम्प्ट किया है उसने. सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट का? 511. एंड ये वहाँ पर इलस्ट्रेशन ए लिखा हुआ है. इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट. नॉट लायबल, नॉट लायबल, नो इज लायबल. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 30. एक्स विद इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज एडमिनिस्टर्ड ए ड्रग टू ए प्रेग्नेंट लेडी व्हाइल चाइल्ड इन द वूम डाइड. एक्स इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस? कॉजिंग मिसकैरेज. 4 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा लगेगा? 312 आईपीसी. Next 31. A. An agent for the sale of goods having authority to sell on credit sells to B on credit without making the proper and unusual inquiry as to solvency of B. B at time of such sale is insolvent. अब क्या होगा? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एजेंट की. वो चेक करता भी उसने किसको दिया है सामान, है ना. तो A must make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. 3 is the answer. नेक्स्ट 32. द केस ऑफ होचेस्टर वर्सेस डेला 2 डील्स विद. किस पर? ये एंटीसिपेटरी ब्रीच पर था. ये ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. नेक्स्ट 33. ऑल इनोसेंट प्रोमिसेस कोलैटरल टू द मेन इलीगल प्रोमिस कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज इलीगल. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 34. डिफेंस ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम इज अवेलेबल टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु हैज कमिटेड मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. 1 is the answer. And 35. Akhtar Ahmed and Sultan enters into an agreement to divide among themselves the money acquired by them by fraud. तो क्या ये एग्रीमेंट बन गया? नोट इज अ void agreement. 3 is the answer. डेफिनेशन क्या है void agreement की? सेक्शन 2G ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. Next 36. The constitutional validity of which section of Hindu Marriage Act was upheld by Supreme Court in Saroj Rani versus Sudarshan Kumar. कौन सेक्शन पर था ये? सेक्शन 9 RCR. 1 is the answer. Next 37. If a girl becomes pregnant by some person before the marriage and subsequently marries third person, what is the position of under Hindu marriage? Marriage is voidable at the option of groom. 3 is the answer. Section 12 voidable मैरिज में इसके लिए ग्राउंड दिया हुआ है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज डी में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 38. मुता मैरिज आर कंसिडर्ड टू बी इलिसिट बाय सुन्नी स्कूल, इस्माइलिया एंड जैदिया. 4 इज द आंसर.
Muta marriage is recognized only by Itna Ashariya sect of Shia school. Next 39, a marriage forbidden by reason of fosterage is, अब ये क्वेश्चन ही देखो क्या पूछा है ने, मैरिज फॉरबिडन बाय रीजन ऑफ फोस्टरेज, फॉरबिडन है तो क्या होएगा, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, क्या होता है, वॉइड होता है, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट provides the provision related to prohibited relationship, that is 2G. 4 is the answer. 2F में क्या है, स्पिंडा रिलेशनशिप. प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है यहाँ पे, पूरा नहीं लिखा हुआ. 2E क्या है, प्रेस्क्राइब. 2D क्या है, यूट्राइन ब्लड. नेक्स्ट 41, अकॉर्डिंग टू विच जूरिस्ट विल इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल राइट और लॉ. ये किसने कहा था, ये कहा था ड्यूइट ने. कई लोग डुगुइट भी बोलते हैं, डुगुइट बोल सकते हो. 1 इज द आंसर. Next 42, whom the following jurists considered will as a essence of legal personality. ये थे जितेल माना. 3 is the answer. Next 43, whom the following is associated with the bracket theory of corporate personality. Bracket theory किसने दी थी है, रुडोल्फ के आयरिंग ने. 4 is the answer. Next 44, which of the following are two leading theories of legal right. एक तो ये इंटरेस्ट थ्योरी है और एक विल थ्योरी है. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 45, राइट इन री एलियना मीन्स राइट ओवर प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. 2 इज द आंसर. री एलियना का मतलब क्या होता है, नॉट हिज ओन, मतलब somebody else's. नेक्स्ट 46, हु हैज डिस्क्राइब्ड jurisprudence as the lawyer's extraversion. जूलियस स्टोन. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये तो. 4 इज द आंसर. कहीं कुछ पता हो, किसी को ना पता हो, जरूर पता होगा. एक्स्ट्रोवर्जन मतलब स्टोन. नेक्स्ट 47, इन विच टाइप ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 पर्सन एट द सेम टाइम. दैट इज ट्रस्ट ओनरशिप. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 48, पोजेशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिएट पोजेशन. 3 is the answer. Next 49, ownership of goodwill is a business of incorporeal ownership. 3 is the answer. देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना, मैंने यूपी सीरीज के में डिस्कस किए थे, यूपी जुडिशरी की मैंने सीरीज बनाई हुई है, और वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे जो 2022 तक पेपर में आए हुए हैं यूपी जुडिशरी में. तो आप वो ज़रूर देख के जाइएगा. सिर्फ 25-30 मिनट की वीडियो है, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी. सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहाँ पर. और अगर और भी क्वेश्चन देखने हो तो मैंने यूजीसी नेट की भी बनाई हुई है, तो जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ के लिए वो भी आप देख सकते हैं. पर्टिकुलर वीडियो है सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन एंड सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस. नेक्स्ट 50, हु डिफाइंड पोजेशन एज टू गेन पोजेशन ए मैन मस्ट स्टैंड इन सर्टेन फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मस्ट हैव सर्टेन इंटेंट. किसने कहा था ये, होम्स ने. 1 इज द आंसर. Next 51, dash states that all actions of human being are controlled by two sovereigns named pain and pleasure. Hedonism. Hedonism states that. 1 is the answer. Pleasure theory कहाँ पर आती है, hedonism से. And LLB 5 ईयर का पेपर देखेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, वहाँ पर पूछा भी हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन आया था, वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू प्लेजर, क्या बोलते हैं उसको, हीडोनिस्ट. 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 52, एनिमस पोजिडेंडी मीन्स इंटेंशन टू पोजेस. इसमें आंसर क्या रहेगा, नन. एनिमस का मतलब क्या होता है, इंटेंशन. नेक्स्ट 53, डैश थ्योरी स्ट्रेसिंग दैट लॉ इज द प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स. ये है लीगल रियलिज्म. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 54, लीगल रियलिज्म वाज एनालाइज्ड इन यूएस बाय होम्स. 2 is the answer. Next 55, codification is the process of transformation of corpus juris into enacted law. 3 is the answer. Next 56, the liability in which the sole intention of law is to enforce the plaintiff's right and not to punish the wrongdoer is known as remedial liability. 4 is the answer. Next 57, which of the following statement describe the relationship between law and morality among non-positively legal theorists.
तो कौन सी डिस्क्राइब करती है? लॉ इज ऑलवेज एडवांस टू मोरल आइडियाज, नो मोरालिटी, फिर लॉ इज इनएक्सटिंकेबली बाउंड बाय द मोरल्स, नो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, है ना, नॉन पॉजिटिव लीगल थियरिस्ट, तो रिलेशन नहीं है लॉ और मोरालिटी में, तो 4 इसका आंसर रहेगा ये। Next 58, the real relation of jurisprudence to law depend upon not upon what is treated but how the law is treated by, किसने कहा है ये? ग्रे, 2 is the answer. Next 59, the maxim solus populi supreme lex means welfare of people is supreme law, 1 is the answer. Next 60, who among the following consider that psychology is of asserting claim is the basis of legal right, किसने कहा था ये? Vinogradov, 2 is the answer. Next 61, which of the following maxim is not related to the law of contract? Consensus addendum ये है, essentium mentim ये है, ex nihilo pacto non oritur action ये है, actus non facietinum nisi mensiti ये किस पे है? तो ये तो क्राइम की मैक्सिम है, essentials of the crime. Consensus addendum मतलब कंसेंट ऑन सेम थिंग इन सेम मैनर. सेंशिमेंटिम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना. एक्स न्यूडो पैक्टो मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, नो एक्शन कैन बी टेकन ऑन एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये इसका मीनिंग है. तो 4 इसका आंसर रहेगा. Next 62, in agreements of purely domestic nature, the intention of the parties to create legal relationship is to be proved to the satisfaction of the court या फिर presumed to be exist. प्रूव करना पड़ेगा ना. 1 is the answer. Next 63, over a cup of coffee in a restaurant, X invites Y to dinner at his house on a Sunday. Y hires a taxi and reaches X's home at the appointed day, but X fails to perform his promise. Can Y recover any damages from X? No. No intention to create legal relationship. अब मैं किसी को बोल दिया यार आना कभी घर पे, संडे को आ जाना, और सच में ही आगे आगे बैठ जाए, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको लाने की, मैंने वैसे ही बोल दिया, फिर तो 2 इसका आंसर रहेगा, नो. नेक्स्ट 64, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, ये होता है वॉइड. बट वैलिड होगा कब? व्हेन मेड आउट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन ड्यू टू नियर रिलेशनशिप. ये स्टेटमेंट जो है हाफ है, इसमें जो है राइटिंग में होना चाहिए वो, प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो जो है वैलिड माना जाएगा. ये सेक्शन 25 ये है एक्सेप्शन 1. टू पे टाइम बार डेट, प्रॉमिस कर लिया टाइम बार डेट को पे करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग, ये है. तो ये दोनों हैं 2 and 3. तो इसमें वैसे देखें तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है इसमें ये. और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये इन्होंने यहाँ से ये बिहार जुडिशरी, बिहार, हिमाचल, यूपी, हर जगह पूछा गया और ऐसे ही पूछा गया है, फिर भी लोग मानते नहीं है. देखो पड़ोस में क्या लिखा हुआ, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो एग्रीमेंट जो है वैलिड. नेक्स्ट 65, कंसेंसस एडिडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन सेम थिंग इन सेम मैन. अभी देखो मैंने बताया था आपको, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 66, द फ्रेज क्वांटम मैरियट लिटरली मीन्स as much as is earned, 1 is the answer. जितना काम किया उतने का पैसा मिलना चाहिए. मान लो आपने किसी को काम पे लगाया, बाद में बोल रहे रहने दे काम मत कर, तुम थोड़ा बहुत किया उसने छोड़ दिया, जितना किया उतने का पैसा देना पड़ेगा ना. 67, a gratuitous promise can be enforced या फिर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. ग्रातिस का मतलब क्या होता है? देखिए वर्ड आया है ग्रातिस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? फ्री. मतलब आप कोई फ्री प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या वो एनफोर्स करा सकते हो? नो, नॉट टू बी एनफोर्स. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 68, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज. डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है सालमन ने. 3 इज द आंसर. Next 69, stipulation in a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate was payable upon principal is not a penalty within the meaning of Section 74 of Indian Contract Act. 1 is the answer. Next 70, a singer contracts with B the manager of theatre for 2 nights in every week. देखिए बीच में वर्ड्स खा गए यहाँ पर. कॉन्ट्रैक्ट तो किया पर किसके लिए? टू सिंग for 2 nights in every week.
during the next 2 months. B engage pay 100 rupees for each night for performance. फिर 6th night A willfully absent herself from the theater and B in consequence rescind the contract. तो अब क्या होगा, B must pay A for 3 nights on which she had sung. जितना उसने काम किया उतना देना पड़ेगा. 3 is the answer. Again quantum Marriott, अभी किया है ना ऊपर क्वेश्चन. 3 is the answer. Next 71. What is the duration of iddat in irregular marriage? 3 courses. 3 is the answer. यहाँ पर देखिए कोर्सेज लिखा हुआ है बट ये क्या बोलते हैं, तूहर पीरियड, 3 तूहर. नेक्स्ट 72. पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मैरिज बिटवीन टू स्पिंडा इज, इम्प्रिजनमेंट है 1 month की और फाइन और बोथ. 3 इज द आंसर. Next 73. A decree of nullity in a case of void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act can be obtained by either by a man or woman. कोई भी ले सकता है obviously. 3 is the answer. Next 74. A decree of judicial separation is a judgment in rem. 1 is the answer. Next 75. That the respondent was at the time of marriage pregnant by some person other than the petitioner is a ground for voidable marriage. अभी देखिए मैंने अभी बताया था ये सेक्शन 12 वर्डेबल मैरिज है और वहाँ पर ये ग्राउंड दिया गया है. अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक नहीं है, फिर से इन्होंने गड़बड़ कर दी पेपर में. कैसे, देखिए 12(1) तो है बट ये 1, 2, 3 नहीं है, ये क्लॉजेज A, B, C है, ये ऐसे करके है ना. A, B, C और D होना चाहिए था यहाँ पर. तो अगर ये D होता तो आंसर होता ये वाला 4, बट मैं फिर से कहूँगा गड़बड़ कर दी यहाँ पर इन्होंने. 76. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमनी पेनेंटिलिटी? होता है इंट्री मेंटेनेंस. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 77. मैरिज ऑफ ऑल पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल इन द रेस्पेक्टिव स्टेट. कौन से केस में कहा गया था ये? सीमा वर्सेस अश्वनी. 4 इज द आंसर. Next 78. Originally under the Hindu Marriage Act, divorce are based on fault theory. 1 is the answer. Next 79. A Muslim wife may sue for divorce under Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 if the husband has been insane for a period of 2 years. 3 is the answer. Section 2 में mention किए गए हैं ग्राउंड, वहीं पर ही mention किया गया है और एक क्लॉज है 6. Next 80. Where the marriage has not been consummated, iddat has to be observed in case of. तो देखिए जब कंज्यूमेट नहीं हुआ तो डाइवोर्स पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेथ ऑफ हस्बैंड पे करना पड़ता है. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 81. व्हाट इज द quorum टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. 4 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. Next 82. Which of the following constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 years? That was 61st amendment. 3 is the answer. Next 83. Number of Lok Sabha seats were raised from 525 to 545. Which of the given amendment? That was 31st amendment. 3 is the answer. Next 84. The electoral college for the election of vice president comprises India in. तो all member of Lok Sabha होते हैं, yes, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं. अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो फिर तीनों होते हैं ये, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ 2, 1 and 3. तो 4 इज द आंसर. का मेंशन किया गया ये आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट 85. क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 1 इज द आंसर. 1951. Next 86. The Supreme Court of India formulated the doctrine of eclipse in Bhikaji Narayan Dakraj versus State of MP. 1 is the answer. Next 87. The satisfaction of President means satisfaction of Council of Minister and not his personal satisfaction, held in case of Shamsher Singh versus State of Punjab. 1 is the answer. Next 88. The concurrent list was described as twilight zone as it were for both the union and states were competent to legislate in the field without coming into conflict. Stated by, किसने कहा था ये? M.V. Pale ने. 3 is the answer. Next 89. Article 16(4)(a) which gives power to the state to make laws regarding reservation in favor of SC/ST was added by the
77th Amendment Act, 3 is the answer. Next, 90. Without paying proper remuneration, labor taken from prisoner is forced labor and violation of Article 23. 4 is the answer. Article 23 क्या है? Prohibition of traffic in human being and forced labor. Next, 91. What offense, if any, has been committed by a married woman giving free consent to her own abduction? No criminal liability against her as the act was not committed in a deceitful manner. 3 is the answer. Next, 92. A young man waves a currency note of rupees 2000 in front of a woman as if he is offering them for indecent favor from woman. He may be criminally booked under with section 509 IPC. 4 is the answer. Next, 93. A snatcher cuts a woman's nostril and committed grievous hurt and later she died. What offense, as if he had committed voluntary causing grievous hurt of serious nature? 1 is the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा इस पर? 326 में पनिशमेंट मिलेगी. ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन, IPC. Next, 94. Whoever counterfeits or knowingly performs any part or process of counterfeit Indian coin under 232 IPC shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and fine. 1 is the answer. Next, 95. X, a servant, committed theft of mobile phone of his master M and ran away from home. While traveling, the said mobile phone was taken away by Y. A co-traveled without the knowledge of X. Decide the liability of Y. Y ने भी चोरी करी है. थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट प्रॉपर्टी होता है फ्रॉम द पोजेशन. X was taken without his consent. X ने तो चोरी करी है, Y ने भी चोरी करी है. 3 इसका आंसर रहेगा. Next, 96. Under dash, party to the suit has to prove that in spite of due diligence, he could not have raised the matter before the commencement of trial. क्या अमेंडमेंट के लिए कर रहा है ना वो? तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑर्डर 6 रूल 17 के प्रोवाइजो में. तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next, 97. Which of the following provision of the CPC prohibits further appeal against decision of single judge of a high court in second appeal? That is 100A. 2 is the answer. और वहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट LPA, लेटेस्ट पेटेंट अपील. नेक्स्ट, 98. सेकेंड अपील shall not lie in any decree as provided under section 102 when the subject matter of the original suit of a recovery is not exceeding 25,000 rupees. 2 is the answer. Next, 99. The jurisdiction of the court to decree specific performance under the, ये specific है, फिर से मिस्टेक कर दी. Specific relief act कौन सा है? Specific relief act है is अब now it is mandatory. 3 is the answer. Before the amendment of 2018 it was discretionary, but अब जो है इसको mandatory कर दिया गया है. Next, 100. Declaratory decree can be granted under section 34 Specific Relief Act. 1 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of LLM entrance exam paper of MDU Rohtak of year 2022. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.